कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चांडेल है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक बवाल क्रिएट कर रहे हैं दोनों। जर्नलिस्ट जस्टिन राव के साथ बहस करने के बाद अब मीडिया हाउसेस ने कंगना को बैन करने का फैसला किया है। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने लिया ये फैसला कि वो कंगना को बैन कर रही है, जिसके बाद कंगना ने एक वीडियो रिलीज कर मीडिया हाउसेस को स्लैम किया और इस वीडियो में उन्होंने मीडिया हाउसेस को बिकाऊ कहा। उसके बाद कंगना के लॉयर रिजवान सिद्दीकी ने उन मीडिया हाउसेस को नोटिस भेजा जिन्होंने कंगना को बैन करने का फैसला किया। और अब रंगोली चांडेल ने भी किया ट्वीट और कहा कि वो उन सब ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवाएंगी जो कंगना के खिलाफ है। रंगोली ने ट्वीट कर लिखा, सर ये दुकान को बंद करवाएंगे और इनको जेल भी भिजवाएंगे, क्रिमिनल कही के। हाउ डेयर दे थ्रेटन, डिफेम एंड इंटिमिडेट कंगना। An unregistered and unrecognized forum has been formed called Entertainment Journalists Guild, which has neither gotten any legal sanctity or any legal standing. And the members of this forum, without considering the gravity of the issue, going all out for Kangana. But now I will get them in. Well, आपको बता दें कि कंगना के लॉयर ने जो नोटिस भेजा था उसमें लिखा है, To whomsoever it may concern, some journalists with criminal intentions and ulterior motives are blatantly contravening and violating norms of journalistic conduct, which is legally binding on them and their profession, and thereby openly defaming, annoying, ridiculing, harassing, and criminally intimidating my client, Ms. Kangana Ranaut, without any provocation whatsoever. These so-called unprofessional journalists mischievously seek to use public platform on every given opportunity to illegally and criminally harass any celebrity, including my said client, despite full knowledge that their illegal and criminal acts are not freedom of speech but amounts to defamation. It is indeed unfortunate that some sincere journalists, without understanding the facts of the matter, have sought to support these other iniquitous journalists who are openly indulging in wrongful criminal acts as mentioned above. It appears that an unregistered association named Entertainment Journalists Guild has been formed in the said matter, and most journalists who are absolutely ill-informed of the factual matrix of the said matter are joining the said association without understanding that they are directly supporting and encouraging unprofessional journalists through such medium, instead of condemning such criminal and wrongful acts. Please do note that such support and encouragement for wrongful acts of unprofessional journalists would amount to conspiracy, connivance, and abetment. It is further important for Entertainment Journalists Guild to clear their stand on the said matter once and for all, and in their own interest, they should immediately demonstrate through their actions whether they want to work against the guidelines which are binding on them, thereby blatantly supporting unprofessional and criminal acts of some journalists or not. आप कंगना की उस वीडियो पर भी एक नजर डालें जिसके जरिए कंगना ने मीडिया हाउसेस को स्लैम किया। इनके पास किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क समीक्षा या विचार जो कि एक पत्रकार का हक है उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके गंदी बातें लिख के प्रोफेशनल ट्रोल्स जो है खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किया हुआ है? मुझे एक अपना लिखा हुआ कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जैसे मैं खुद को अगर कलाकार कहती हूँ तो कुछ तो होना चाहिए टू माई क्रेडिट। आप खुद को क्यों पत्रकार कह रहे हैं? किस लिए आप पत्रकार बने हुए हैं? इन 3-4 लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैंने उस इंसान के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, मैंने कहा एक इंटरनेशनल को मैं क्यों एंटरटेन करूं? मेरे पास किसी भी तरह के देशद्रोही के लिए 0% टॉलरेंस है। तो 3-4 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, शायद कल ही बनी है, ना ही उसकी कोई मान्यता ही है और ना ही उसकी कोई धारणा ही है। तो उस गिल्ड के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। जो अपनी देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। और इससे ज़्यादा बड़ा एहसान आप मुझ पर नहीं कर सकते कि आप मुझे बैन कीजिए। यानी कि अब ये मामला और भी बिगड़ गया है। अब देखना ये होगा कि आगे और क्या क्या होता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.